In every day, we have 1444 minutes. That means we have 1440 daily opportunities to make a positive impact. Create a positive impact from today and make this world a little better. A very good morning to everybody, and I welcome you all for the 21st episode of the Corona Wellness Program. And I welcome all the viewers from the Facebook and the YouTube. If you have not called your friends or family members are not there, please call them so that the program is going to start in few minutes. So this Corona Wellness Program is an initiative by the Bharat Scouts and Guides Karnataka with our blessings from the State Chief Commissioner, Shri PGR Sindhya Sir, along with Seki ji and his team from LIA, the Life Essence Academy. I would like to welcome you all for the featuring session by Dr. Jignasha and Miss Bindu Bendre to guide us through yogic breathing and the affirmations. I welcome Mr. Vishal Methi sir to the host of the day to introduce the facilitators to us. Thank you so much. Very good morning. So let me tell you the vision of the program. Let me tell you the duration of the program and the program details. So the vision of this program is very simple and clear. We want to create a super healthy world. We want to we want to serve the mother nature. So the total duration of the program is for 30 minutes. It is divided into two parts. First 20 minutes, we will learn the physical exercise from Dr. Janashaji. And second, last 10 minutes, we will be working on mental exercise and Binduji will guide us through affirmation sentences. Dr. Jignashaji is an international sound healer as well as she has done post-graduation diploma in yogic science from Saurashtra University. She get an opportunity to work with or to learn from the yogic science scientist Dr. M. Gore and Dr. Bhole. They are from Kevalya Dham, Lonavala. She is a Reiki master as well as she is a teacher in art of living. She helps people to on the parenting by Garb Sanskar classes as well as she is helping people by teaching their yoga knowledge as well as sound healing. So now I would like to invite Dr. Jignasha ji. Over to you, ma'am. Thank you. थैंक यू। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो ये योग यात्रा में आज सबका हार्दिक अभिवादन। प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। पहले अपने आप के साथ जुड़ जाते हैं, फिर हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ेंगे। आंखें बंद कर ले। कमर को सीधा करें। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पे रखते, चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान और अपने ही शरीर को सामने से देखें। पूरा एक स्वस्थ शरीर, पूरी तरह से शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। ज्यादातर हमारी दृष्टि बाहर ही रहती है, बाहर ही हम देखते रहते हैं। यही समय है योग का, जब हम अपने आप के साथ जुड़ते हैं। एक गहरी लंबी सांस लें, रोकें और धीरे से सांस को छोड़ दें। फिर से एक गहरी लंबी सांस लें और ये यूनिवर्स की अफाट ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, ये भाव से जुड़ते जाए। रोके और सांस को छोड़ते छोड़ते पूरी तरह से शांत होते जाए, रिलैक्स होते जाए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
पेट को खींच के ही रखेंगे। फिर से गहरी लंबी सांस छाती से लेंगे। ले ले, छाती को फुलाते जाएं, फुलाते जाएं और धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। पेट अंदर ही रखेंगे खींचा हुआ। फिर से एक गहरी लंबी सांस ले और सांस को छोड़ते छोड़ते पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाए और अपने आप के साथ जुड़ते जाए। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में ले लेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। धीरे से हाथ को रिलैक्स कर दें, आंखें खोल सकते हैं। त्वं शक्ति त्रयात्मका ओम। तेरी शक्ति मेरे अंदर, हमारे अंदर तीन रूप में विराजित है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति, अभी आपको ऐसे हुआ कि मुझे स्वस्थ रहना है, तो ये हमारी इच्छा हुई। फिर ज्ञान, तो हमने नॉलेज कैसे सीखेंगे, तो अभी ये इतना मतलब स्टेप बाय स्टेप लर्निंग चल रहा है। ये तीसरा वीक आज खत्म होगा, तो आपको मिला और आप कनेक्ट हुए और फिर आपने वो करना शुरू किया। तो वो ज्ञान शक्ति के रूप में कब बना, जब हमने अपने ऊपर उसका प्रयोग किया, उसके साथ जुड़े, तो ज्ञान शक्ति। और क्रिया शक्ति, तो क्रिया शक्ति जैसे हम ऐसे बोलते हैं पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, तो हमारे शरीर में ऐसे जो 9 सिस्टम्स है वो अपने आप चलती है ना। तो कैसा, मतलब अभी देखा जाए तो ये एनर्जी को देखो कि अभी हमने मुंह में कुछ भी डाला, निवाला डाला, कुछ भी खाया और एकदम से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो गई। पूरे समय हमारी रेस्पिरेटिव सिस्टम चलती रहती है 24/7। तो ये जो एनर्जी है वो क्या है, तो उसके साथ जुड़ने का माध्यम है प्रणव, प्रणवनाद, तो वो है ओम। तो 3 बार हम आज ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिसमें सिंपली आपको ओ के लिए जैसे जो लिप का जो शेप है वो ओ जैसे करना है, और पेट उस समय जब आप ओ बोले पेट को अंदर खींचना है, और म साउंड में होठ को बंद करके ऊपर की ओर अटेंशन लेते हुए सेंटर ऑफ द हेड, यहाँ मध्य में अपना ध्यान लेते हुए मकार करना है। और ओ को कम समय देना है, मतलब अभी आप 2 सेकंड ओ बोलेंगे तो 4 सेकंड मकार करना है। आप सबको पता ही है, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च ओम नाद के ऊपर, प्रणवनाद के ऊपर हुए हैं। तो और योग दर्शन में भी बताया गया है, तस्य वाचकः प्रणवः तच्च दस्त भर्त भावनम। उसका उच्चारण पूरे भाव से करना चाहिए कि हम ये 3 शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो लेट्स चेंज ओम टुगेदर। स्पाइन इरेक्ट, आंखें बंद कर लें, सांस भरें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएं। फिर से एक गहरी लंबी सांस ओम के लिए भरें और नाभि के ऊपर ध्यान देते हुए वहीं अटेंशन से ओ बोलने की शुरुआत करेंगे। मंत्र का आवाज
सांस भरे, सांस भरे, अपना ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर रखेंगे, सेंटर ऑफ द आईब्रो, सेंटर ऑफ द फोरहेड। इसे आज आप दिन के शुरुआत में, रात को सोते समय ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। और जब भी बहुत ऐसे लगे कि बहुत विचार आ रहे, मन शांत ही नहीं हो रहा है, उसी समय आप 11 बार, 21 बार ऐसे, या 3 मिनट, 5 मिनट ओम मंत्र का उच्चारण करके मन को शांत कर सकते हो। धीरे से आंखें खोले। आज हम सीखेंगे उज्जयी प्राणायाम। आगे हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम को सीखा है। ये जो स्वामी स्वात्माराम ने जो हठयोग प्रदीपिका में 8 प्राणायाम दिए हुए हैं, उसमें से एक ये प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी नाम ही बताता है, उज्जयी मीन्स जयकारा, जो जय घोष हम करते हैं कभी भी, जो जब विजय हुई तो हम बोलते हैं ना, भारत माता की जय, है। तो ऐसे ही ये जो उज्जयी प्राणायाम है, वो हमको हमारी आध्यात्म यात्रा में आगे ले जाने में मदद रूप करता है। बहुत, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी में ये उज्जयी प्राणायाम बहुत उपयोगी है। और दूसरी बात, जिसको भी अभी मतलब जो कफ का प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस जैसे बोले, गले का कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे ये उज्जयी प्राणायाम से बहुत अच्छी तरह, मतलब आप ठीक ही हो जाओगे। रेगुलर प्रैक्टिस, ऐसे नहीं 2-3 दिन कर लिया, प्राणायाम की प्रैक्टिस ऐसे कंटिन्यूस आप 3 महीने करते हो, तो उसके हर जो भी मतलब फायदा है, बेनिफिट है, वो आपको जरूर से मिलेंगे। पर उसके सिस्टम से साथ जुड़ना है, कैसे करना है, वो अच्छे से सीख के आपको करना है। तो और जैसे जिसको एज अ सिंगर जिसको आगे जाना है, तो गले को ठीक करने के लिए, या जो स्पीकर है उसके लिए ये उज्जयी प्राणायाम बहुत उपयोगी है, लाभप्रद है। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे करना है वो सीख ले। प्राणायाम के रूल्स वो ही रहेंगे जो हमने सीखे थे, कि थ्रू आउट द प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, पेट को हम खींच के रखेंगे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, पूरक और रेचक के समय। दूसरी बात, जो ये हमारी जो हमने प्रणव मुद्रा सीखी थी, कि हाथ को ऐसे खोल के मुट्ठी लगा के थंब आउट, फिर उसको उंगलियों के ऊपर लगा देंगे, और जो लास्ट 2 फिंगर्स है उसको पूरा खोल के फिर थंब को थोड़ा खोलेंगे। ये हमारा प्रणव मुद्रा भी वो ही रहेंगी जो हमको उज्जयी प्राणायाम में यूज करनी। और सबसे इंपॉर्टेंट है उसका साउंड। यहाँ जो ग्लॉटिस है उसको खींच के हमको एक साउंड प्रोड्यूस करना है, सांस भरते छोटे समय और सांस लेते समय, है। तो जैसे पुराने जमाने में किसी ने मतलब ये साउंड सुना होगा, कि वो कोयले वाले जो इंजन होते हैं, वो जब चलते तो जो आवाज आती है, उस तरह से सांस भरने के समय और छोड़ने के समय आपको गले को खींच के, ग्लोटिस को खींच के साउंड करना है, प्रोड्यूस करना है, और उसके साथ प्राणायाम करना है। साउंड देख ले, जैसे वही रेशियो से चलेंगे, 1 2, जैसे 3 सेकेंड्स ब्रीदिंग, इनहेल रेचक किया तो 6 सेकेंड्स पूरक करेंगे, सांस भरे 3 सेकंड तो 6 सेकंड सांस को छोड़ेंगे। वो रेशियो से देखे तो बस
ये समझना बहुत जरूरी है, जो ये साउंड हो रहा है गले से, राइट? तो ये मतलब जैसे आप स्ट्रो से कुछ पी रहे हो, जो जैसे आवाज आ रही है वो नाक से आपको गले को खींच के लेनी है। ये आवाज एकदम परफेक्ट आनी चाहिए, वो आपको सीखना है, और कहीं भी खिंचाव तनाव नहीं आना चाहिए। बस ये बात ध्यान में रखते हुए अभी हम उज्जैन प्राणायाम करते हैं। और उसमें क्या करना है, मतलब जब आप पूरा कर रहे हो, सांस भर रहे हो, उसी समय दोनों नासिका का उपयोग करेंगे, दोनों नासिका से सांस भरेंगे, और सांस को छोड़ते समय हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, बाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे, है ना? वो प्राणायाम आपने बाएं और मैंने इसे करके अनुलोम विलोम में सीखा था, ये भी करा है, ये भी सीखा हुआ है, पर ये उज्जैन प्राणायाम में बस इतना ही फर्क है, दोनों नासिका के सांस लेना है और बाईं नासिका से श्वास को छोड़ना है। क्लियर? तो अभी हम क्या करते हैं, अपना बायां हाथ रख दे घुटनों के ऊपर, या और बैठ जाए सुखासन और पद्मासन, जो भी आपको कंफर्टेबल पोस्चर है, राइट? पद्मासन बहुत मतलब प्राणायाम जब भी करो आप पद्मासन से करते हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है, वो आपको प्राणायाम के साथ मिलेंगे। साथ में वो भी चेक कर लेना है कि दोनों नोस्ट्रिल चल रही कि नहीं, राइट? दोनों नोस्ट्रिल चल रही है तब भी आप प्राणायाम कर सकते हो, वो भी हमने डिटेल में उसके बारे में सीखा था। अभी मान लो एक ही नोस्ट्रिल का फोर्स है, डोमिनेंट है, ऐसे ब्रीथ आउट करो और देख लो कौन सी नोस्ट्रिल चल रही है। मान लो अभी राइट चल रही है ना? तो आपको क्या करना है, दोनों नोस्ट्रिल ओपन करने के लिए खड़े होके दोनों हाथ ऊपर करके पांव को छूना है, पाद हस्तासन। कितनी? 1 मिनट के लिए। वो आप कर लोगे, फिर आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करोगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो ये नाड़ी मतलब प्राणायाम के जो बेनिफिट है, नाड़ी शुद्धि वो सब तो होंगे, और उसके साथ ये फेफड़ों के ऊपर, गले के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगी, राइट? कफ जो है, भरा हुआ कफ निकालने में, और हर रोज जब सो के उठते हैं तो भी काफी कफ जमा हो जाता है गले में, ये तो उस समय भी इसके लिए भी ये उज्जयी प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। तो चलो शुरू करते हैं। दोनों प्रणव मुद्रा में ले लें और अभी सिर्फ नाक के पास रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। मेरी इंस्ट्रक्शंस के साथ शुरू करते हैं। मैं साउंड तो अभी नहीं कर सकती, साथ में आप बोल रही हूँ तो आप बस इंस्ट्रक्शन सुनते जाए और उसके साथ उज्जयी प्राणायाम करते जाए। कमर गर्दन सीधी, हाथ प्रणव मुद्रा में रख लें, नाक के पास, नाक के नीचे ऐसे। ओके, आंखें बंद कर लें। धीरे से दोनों नोस्ट्रिल से सांस भरना शुरू करें। 1 2 3 4। दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं से छोड़ना शुरू करें। ब्रीथ आउट 2 3 4 5 6 7 8। दाहिनी नासिका को खोल दे, दोनों नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन, सांस भरे, 2 3 4। राइट को बंद करें थंब से, ब्रीथ आउट लेफ्ट से, ब्रीथ आउट 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने हाथ साथ ही करते हैं। जब आप बाईं नासिका से सांस छोड़े तब रिलैक्स कर सकते, आंखें बंद ही रखें। और देखें, सिर्फ हमने
3 राउंड किए और पूरा मन शांत हो गया। गले के ऊपर ध्यान ले जाए, छाती के ऊपर ध्यान ले जाए। अब धीरे से मतलब आंखें खोल के आप पीठ के बल लेट जाए। हम 2 मिनट का शवासन करेंगे। लाई डाउन ऑन योर बैक। दोनों पांव को फैला दे। ये जो भी आसन है उसमें ये रिलैक्सेशन पोस्चर है। तो रात को सोते समय भी आप पहले शवासन करके अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर अटेंशन लेके, मतलब अपने शरीर के साथ जुड़ के फिर आप जब सोते हो तो भी एक अच्छी नींद होती है। और दूसरी बात कि जब आप कोई भी आसन कर लिया उसके बाद ये शवासन बहुत जरूरी है। लाई डाउन ऑन योर बैक। दोनों पांव को फैला दे, हाथ को रिलैक्स कर दे, हथेली आकाश की ओर। दोनों पांव को रिलैक्स करे, पूरी तरह से ढीला छोड़ दे। दोनों हाथ को ढीला छोड़िए। रिलैक्स योर स्पाइन कंप्लीटली। रिलैक्स। चेहरे को ढीला छोड़े। आपका पूरा शरीर चेहरे से लेकर पंजों तक रिलैक्स हो गया है। अभी हम एफर्मेशंस की जर्नी करेंगे जो बिंदु जी आपको करवाएंगे। शवासन में रहते हुए एफर्मेशन से जुड़ते जाए। नमस्ते, आप शवासन में ही रहिए और अब हम अफर्मेशन सुनेंगे माइंड के ऊपर जो मनोज जी की आवाज में है। और जब जब गैप है या तो आप इसे मन में दोहरा सकते हैं या जोर से। अगर आप शवासन में हैं तो आंखें बंद करके एक मेडिटेशन स्टेट में जा सकते हैं। हम एफर्मेशन सुनेंगे। माइंड। हमारे पास 3 दिमाग है। पहला सबसे पुराना जो रेप्टिलियन ब्रेन कहलाता है। जैसा ब्रेन बढ़ते गया ममेलियन ब्रेन बना और ब्रेन बढ़ा तो ह्यूमन ब्रेन आया। जैसे आपको याद होगा हमारा शुरुआत पहले मछली से हुई, मछली के बाद एम्फीबियन हुआ, एम्फीबियन के बाद रेप्टिलियन हुआ। जैसा ब्रेन बढ़ते गया तो ममेलियन हुआ और भी बढ़ा तो ह्यूमन ब्रेन हुआ। ब्रेन का कुछ प्रिंसिपल्स है और सबसे महत्व प्रिंसिपल ये है, द ब्रेन इज वेरी क्लियर विथ व्हाट वी वांट और व्हाट वी डोंट वांट। यानी कि दिमाग बहुत क्लियर है जो हमें चाहिए या जो हमें नहीं चाहिए। जो विचार हम अंदर डालते हैं वही विचार को वो प्रोसेस करता है। हमें कैसा मालूम पड़े कि जो हम सोच रहे हमारा फायदे क्या है या नुकसान कर रहा है। बहुत सिंपल है, अपना हाथ लीजिए और दिल पे रखिए। अगर अच्छा लगता है तो दिमाग वही प्रोसेस कर रहा है जो हमें चाहिए। जब अच्छा नहीं लगता है तो दिमाग वही प्रोसेस कर रहा है जो हमें नहीं चाहिए। अभी अफर्मेशंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे विचार बहुत ही क्लियर है।
मैं रोज प्रतिदिन नए ग्रेटिट्यूड्स ढूंढता हूँ और एक्सप्रेस करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। छोटी छोटी बातों का मैं आभार मानता हूँ, छोटे छोटे कार्यों के मैं आभार मानता हूँ। थैंक यू। मैं रोज ध्यान 2 से 3 टाइम करता हूँ। मेडिटेशन के बाद मुझे जो चाहिए मैं उसे विजुलाइज करता हूँ और वो विचारों से खेलते रहता हूँ। जब भी मैं आईना के पास जाता हूँ मैं मुस्कुराता हूँ और अपने आप को कहता हूँ आई लव यू। थैंक यू। जब भी मैं किसी को भी देखता हूँ बहुत स्वस्थ शरीर के साथ, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। थैंक यू। मेरा दिमाग शांत है और मेरा दिमाग बहुत शांत रहता है। थैंक यू। मैं वही कहता हूँ, मैं वही एक्सप्रेस करता हूँ जो मुझे चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी मैं कार्य करता हूँ उसके साथ 100% रहता हूँ। खाना खाते समय, स्नान करते समय, ब्रश करते समय हमेशा 100% उसके साथ रहता हूँ। थैंक यू। मैं हर कदम पे कुछ न कुछ सीखते रहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिन में 1000 बार हंसता हूँ और हर पल का आनंद लेता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई हैव अ सुपर मेमोरी और हर चीज को याद करता हूँ जो भी मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मनोज जी फॉर दिस ब्यूटीफुल एफर्मेशंस। ऐसे कई सारे एफर्मेशंस आपको मिल सकते हैं। आप अब धीरे से उठकर बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल हो सकते हैं। हमारे कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें यही ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप हमेशा खुश रह सकते हो, चाहे कुछ भी हो जीवन में, कैसे आप उस एनर्जी में आ सकते हो। इसकी और जानकारी के लिए हमारे हेल्प डेस्क पे आप आ सकते हैं। हेल्प डेस्क का नंबर यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है और QR स्कैन कोड भी है जिसमें आप डायरेक्टली स्कैन करके 8 से 9 बजे तक ये हेल्प डेस्क शुरू है, तो अभी आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं 8 बजे। इसी तरह शाम को भी 1 घंटा 8 से 9 अवेलेबल है, तो आइए और हमें आपको सर्व करने का और भी मौका दीजिए। अभी समय है सेगमेंट इंटेंडिंग का, तो चलिए मनोज जी के साथ मिलकर हम सेगमेंट इंटेंडिंग करते हैं और जैसे जैसे वो बता रहे हैं वैसे उनके साथ हम ये करेंगे। सबका स्वागत है। अभी ये एक समय सेगमेंट इंटेंडिंग के लिए है। सेगमेंट इंटेंडिंग क्या है? ये
सेगमेंट इंटेंडिंग एक पॉज है, एक ब्रेक लेते हैं हर 1.5 घंटे में, और ये ब्रेक में हम क्या करते हैं, 1 मिनट लेते हैं धन्यवाद कृतज्ञ भाव में रहने के लिए जो हो गया, और कृतज्ञ भाव पहले से ही रहने के लिए जो होने वाला है अगला 1.5 घंटा। एक भूतकाल, एक भविष्य काल। क्या करना है? सिंपल, अपना हाथ हृदय चक्र में डालिए, पिछले 1.5 घंटे को थैंक यू करना है। पिछले 1.5 घंटे में क्या थैंक यू करना है? पहले हम 3 चीज ग्रेटिट्यूड देना है, 3 चीज को कृतज्ञ भाव देना है। पहला, अगर आपके पास गुरु है, गुरु नहीं है तो माता पिता डेफिनेटली, तो थैंक यू गुरु जी, या थैंक यू मम्मी डैडी, मुझे इतने अच्छा जीवन देने के लिए। दूसरा थैंक यू ये पूरे धरती माँ को, जो हमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये धरती माँ जिसने मुझे इतना प्रेम दिया है। और तीसरा थैंक यू मेरे शरीर जो मुझे स्वस्थ रख रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हो गया पास्ट, भूतकाल। अभी भविष्य काल। ओके, अपना दूसरा हाथ इधर रखिए और ये कह सकते हैं मेरा अगला 1.5 घंटा बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बहुत हंसमुख रह रहा हूँ। और आप जो भी आपको अगले 1.5 घंटे में चाहिए, जो आपका कामकाज कर रहे हैं, वही कामकाज को आप पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताना है, वर्तमान प्रेजेंट टेंस में बताना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा काम बहुत अच्छा जा रहा है। इस तरह से यही हर 1.5 घंटे में हम पॉज लेते हैं। इसको बोलते हैं सेगमेंट इंटेंडिंग। सेगमेंट को हम इंटेंशन करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर जिग्नाशा जी, आपके बहुत ही बेहतरीन योगिक सेशन के लिए, ब्रीदिंग और सब कुछ जानने के लिए, एक्सरसाइज। Thank you, Bharat and Scouts team, to arrange this lovely platform. Thank you, PGR Sindhya ji. Thank you, Manoj ji. आपके blessings के लिए thank you. I hope everybody had a great time today where they learned more about breathing exercises and affirmations. And now we have come to the end of this session. Next, we'll go forward with tomorrow's session. Tomorrow morning, 7:30 a.m. we'll be having the Hindi Corona Wellness program. So you all can join us tomorrow morning, and you'll be learning something new every day. So please don't forget to subscribe our channel in YouTube and to like our videos in Facebook so that you'll get the daily updates. And today evening at 7:30 p.m. we are going to have our Corona Wellness English episode where you all can join evening too. We'll be going forward with the Bharat Scouts and Guides Karnataka's initiatives. The first initiative is Scouts Care for COVID. So people who are affected with COVID and who are at home isolation in Bangalore, who are residing in Bangalore, Scouts are helping them by providing oxygen bank. So you can contact this particular number which is there. So if anybody, your friends, family, relatives, anybody is there in Bangalore and who wants oxygen concentrator, so you can just contact this number. The Scouts and Guides will come to your house and they'll give it to you. Moving forward, we have the Scouts digital Scout registration. The Bharat Scouts and Guides Karnataka is going digital for sending all the information, getting to know all the new initiatives that Bharat Scouts and Guides Karnataka is doing, and all the information, all the submissions are happening online. So to get to know all the details, I hope everybody has registered in the particular link. So you can go to this, if you cannot find this link, you can go to Bharat Scouts and Guides Karnataka website, and in there in the link section you can find this particular link. So please use this link to make 100% use of the data that you get. Moving forward, we have Scouts Kilo. We have completed the 3 badges explanation for Scouts Kilo, and all the information has been provided in the webinars. So if you have not attended the webinars, no issues. You can go to our Facebook page and YouTube page and you can find out the previous videos. And to submit after you finish what all the tasks are given,
You can use this particular link, bsgkarnataka.org /cook badge, or you can find this particular link of cook badge, solar energy badge, and bookbinder in Bharat Scouts and Guides Karnataka website in the links section. Moving forward, we have the family tree upload. After you complete the family tree, which is one of the new initiative, you have to make your family tree creative by giving it different, using your creativity, using your thinking process, making it more creative, beautiful, and colorful. After you make it, you can just post it, and the best family tree from each district will be awarded and rewarded. And while you're doing the family tree, I hope you'll be calling your family members to know about your family and experience. So while you're talking about that, just have a conversation about scouts and guides, where what if they were in scouting and guiding at that particular time. If they were in scouting and guiding, what was their experience and how it was, and if they want to join back scouting and guiding, how they can join and how they can contribute. And if they're new to scouting and guiding, you can just introduce them to scouting and guiding, what we do in scouting and guiding. So we tell, once a scout, always a scout. So this is the new initiative called Once a Scout, Always a Scout. So I hope everybody is having a great day and hope to see you again today evening.